session 11, and today's topic of this session is product photography. As you have seen my posts on VLE regarding product photography, I shared a video with you all to view it. I'm assuming and I'm hoping कि आपने वो video देख ली होगी. And apart from this, if we talk about the previous assignment, which was basically on nature photography, I saw your work on the Facebook group जो भी आप लोगों ने assignments post किए. It was very nice, very colorful, very rich images. I really appreciate कि आपने आप लोगों ने जिन submit किया. It's a very good submission. I liked it. और जिस तरीके से कंपोज किया हुआ है एंड लिमिटेड सिनेरियो में भी व्हाट यू कुड डू योर बेस्ट, यू हैव डन दैट. आई अप्रिशिएट दैट यू डन एफर्ट्स एंड most of the work I've seen already, and just wanted to appreciate you out here as well. Group पे तो मैं appreciate कर ही देता हूँ, comment कर ही देता हूँ आपके काम पे. So beginning with today's session is we have product photography as a genre of photography in today's class, and I've also asked you guys on VLE कि give me ideas of what product would you choose for this task for the product photography. जिसमें मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा था जैसे रिस्ट वॉचेज हैं, परफ्यूम्स हैं, क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से, बॉडी स्प्रेज हो गए, शैम्पूज हो गए, you know your personal belonging. Basically you don't have to go anywhere and get any new product, but आपकी personal belonging में से जो products हैं, I would like you to choose those products, and उसको हम product photography में आज use करेंगे for this task. So the type of products which you will choose would be of two types. एक ऐसा product होगा जो क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट होगा, राइट, एंड दूसरा प्रोडक्ट ऐसा होगा जो ओपेक होगा. So the transparent product would be like a perfume bottle. So I'm going to share my screen with you and I'm going to show you some work of my previous students. And उसमें बेसिकली जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट हैं उसमें इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी काम है, and the Aga Khan University में product photography and other genres of photography I teach, उनका भी काम है. So I'm going to show you all that work, so you will have an idea कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो for this particular task. Inside your home जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो यूज हो सकती है. So I'm just Leroy, I'm just allowing you to talk so that if you can see my screen, let me know. G, can you see my screen? G, can you all see my screen? Leroy, can you see my screen? I have unmuted you. Or just type in the chat if you can see my screen. Yes, okay, you can see my screen. Okay, so these are some of the images taken by my students from AKU, and I'm going to show you these images. So these are the environment जो इसका setup किया था हमने, it was very simple. I'm hoping again that you've seen the video जिसका link मैंने share किया था VLE पे. So you don't need expensive equipment to do product photography. For example, for this kind of a product shoot जो मैंने pull off करवाया अपने students को, नॉर्मल चार्ट पेपर्स जो स्टेशनरी स्टोर पे मिलते हैं वो लेके आई शोड देम, आई गिव देम अ डेमो के प्रोडक्ट बॉक्स बनाने का ना. तो इट वाज वेरी सिंपल, बट एक शीट लेके रोल कर दी दीवार के साथ, कर्व दे दिया उसको, एंड साइड पे 2 शीट्स रख दी एज ए रिफ्लेक्टर, उनको स्टिक कर दिया, दैट्स इट. और ऊपर से ओपन है, साइड फ्रंट से ओपन है जैसे आप पिक्चर लोगे. सो इट्स काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट बॉक्स जो
अब आप पिक्चर देख के अंदाजा लगा सकते हैं दिस प्रोडक्ट बॉक्स वी मेड वाज इन अराउंड आई थिंक 200 रुपीस, 200 रुपए में ये प्रोडक्ट बॉक्स बन गया था. Otherwise, if you go to buy equipment, professional equipment for product photography, it'll start cost you around 8,000 and onwards. 3,000 का भी मिल जाता है चाइना का प्रोडक्ट बॉक्स. तो ये जो है उस तरीके से हमने प्रोडक्ट शूट किया. ऑल्दो वी यूज DSLR इन दीज इमेजेस, बट जो सेटअप किया है उसके अंदर आप सेलफोन भी यूज कर सकते हो. This is the reason why I gave you a video link to watch. Cell phone से किस तरीके से प्रोडक्ट शूट किया जाता है. एंड दैट गाय इन द वीडियो बेसिकली टू A4 साइज वाइट पेपर्स. उसने A4 साइज वाइट पेपर्स को रखा है, एक फ्लोर बनाया है, एक से वॉल बनाई है उसने, और एक जो है वो फिल करने के लिए एज ए रिफ्लेक्टर उसने बनाया था, राइट, उस वीडियो में. तो इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो वी कैन स्टिल वॉच इट हियर एंड आई कैन शो यू कि किस तरीके से वो कर रहा था. सर आवाज आ रही है? जी आवाज अब आ रही है आपकी. ठीक है. उस वक्त आप बोल रहे होंगे, शायद आवाज नहीं आ रही थी मुझे, अभी आ रही है. आई गेस वो म्यूट पे था सर. ओके, आई जस्ट नीड टू हियर यू यस यस एंड दिस इज इट, सो दैट आई नो आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक एंड एवरीबॉडी इज हियरिंग मी. दैट्स इट. Okay, so I'm going to show you this video. You already seen it, but I'm assuming कि आपको मेरे ये वीडियो का साउंड नहीं आ रहा होगा, ऐसा ही है ना? जी सर नहीं आ रहा है. हाँ, that's fine. You've already watched the video. Sound की जरूरत नहीं. I'm just telling you how he has. See, a flat surface, a smartphone flat surface could be your table, dining table maybe, you know, your camera, DSLR camera, cell phone camera, and A4 sheets. A4 sheets you can easily find in your house. अगर चार्ट पेपर हो तो you the luckiest guy right now. अगर चार्ट पेपर नहीं है तो I've seen some of the stationery shops are open these days. कुछ खुल गई हैं basic stationery shops. So you can go and buy a chart paper there from there as well. Otherwise A4 papers आपके घर में हैं ऐसे white, so you can use it. See, this is what I'm talking about. So what he's done is कि इसने एक जो है फ्लोर के लिए यूज किया है A4 शीट, एंड दूसरी A4 शीट जो है इसने वॉल के लिए यूज किया है, ठीक है, व्हाइट शीट. एंड थर्ड A4 शीट इज हियर ऑलरेडी. तो ये एज ए रिफ्लेक्टर यूज करेगा. अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, रिमेंबर प्रोडक्ट फूड फोटोग्राफी हमने की थी, उसमें भी मैंने आपको एक टिप दी थी. दैट टिप वाज कि गो क्लोज टू योर विंडो. डे लाइट में शूट करो, गो क्लोज टू योर विंडो एंड यूज योर विंडोज एज अ लाइट सोर्स. एंड विंडो के आगे व्हाइट शीट लगा दो, फैब्रिक लगा दो व्हाइट, और वो सॉफ्ट बॉक्स का काम करेगा, राइट. तो सिमिलरली यही सेटअप है, इसने वीडियो में भी यही सेटअप है कि इतना करीब नहीं जाना है सनलाइट के या विंडो के. You have to be at a little distance because बहुत harsh light product में नहीं आनी चाहिए. Yeah, Huzaifa, I'm taking your question in a while. So इसको जो है थोड़ा सा टेबल को आपने विंडो से दूर रखना है. एक डायरेक्शन से विंडो से लाइट आ रही है इस टेबल पे प्रोडक्ट. अब ये यहाँ पर शैडो बन रहा है, तो इस शैडो को क्या करेगा, इस जो थर्ड शीट है इसके पास उससे फिल करेगा. तो ये विंडो है इसकी, ये पिक्चर ले रहा है, राइट. अब ये दो पिक्चर्स लेगा. एक पिक्चर इसने ली है विदाउट फिलिंग, यहाँ पर शीट यूज नहीं की. नाउ ही इज गोइंग टू यूज दिस शीट एज अ फिलर. दिस शीट इज बीइंग यूज्ड एज अ फिलर. सो व्हाट हैपेंस इज ये शैडो कैंसिल कर देता है, क्योंकि यहाँ से व्हाइट है, व्हाइट रिफ्लेक्ट करता है, वहां से सनलाइट आ रही है, उससे व्हाइट शीट रिफ्लेक्ट कर रही है. तो ये शैडो इसके जो पहले डार्क शैडोज, हार्श शैडोज बन रहे थे, अब वो फिल इन हो रहे हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रही है थोड़ी. तो इट लुक्स नाइस. बेसिकली प्रोडक्ट फोटोग्राफी में सॉफ्ट इफेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है ना, शैडो इतना ना आए, यू नो, सॉफ्ट इफेक्ट हो. जी, दिस इज सॉफ्टर देन प्रीवियस इमेज क्योंकि उसमें ज्यादा शैडो था इसका. तो अगेन वंस यू टेक द पिक्चर, क्रॉप इट आउट, ओपन इट इन अडोब कैमरा रो, उसके अंदर एडजस्टमेंट्स करते हो आप, ट्रीटमेंट करते हो, शार्पनेस इंक्रीज करते हो, तो द प्रोडक्ट फोटोग्राफी लुक्स ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एंड इट डजंट लुक्स लाइक कि आपने जो है ये क्या कहते हैं किसी प्रोफेशनल प्रोडक्ट बॉक्स में किया है या नहीं किया. इट डजंट लुक्स, मतलब उसमें डिफरेंस समझ नहीं आता.
तो इवेंचुअली आपका आउटपुट देखा जाता है, नॉट दैट कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है प्रोडक्ट फोटोग्राफी के सेटअप में. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन फ्रॉम हुजैफा. यू वांटेड टू से समथिंग? सही हुजैफा अली. यस जी, सही हुजैफा बोल. जी सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोले. जी सर, मुझे सिर्फ ये पूछना था कि मेडिसिन के जो डब्बे होते हैं, क्या हम उसको बना सकते हैं उस पर वाइट पेपर लगा के? मेडिसिन का जो बॉक्स है वो आपका प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाट यू से? नहीं सर, प्रोडक्ट बॉक्स जो आपने बताया कि उसके लिए वाइट शीट्स लगानी पड़ेगी और हाँ उसको हाँ. स्टिक करना पड़ेगा, तो जो मेडिसिन के जो डब्बे होते हैं, तो उसके ऊपर वाइट शीट स्टिक करके हम उसको बना सकते हैं प्रोडक्ट बॉक्स? मेडिसिन के बॉक्सेस तो बहुत छोटे नहीं होते. नहीं सर, पूरे बड़े डब्बे जो होते हैं. आई हैवंट सीन दैट. अगर मैंने देखा होता तो आई वुड हैव विजुअलाइज कि वो कितना बड़ा बॉक्स सर होता है. जैसे कितना बड़ा शूज हो- के जैसे शूज के जो साइज अच्छा, शूज के बॉक्स का होता है उससे थोड़ा बड़ा ही होगा. राइट राइट राइट. हाँ, शू साइज का बॉक्स होता है तो यस यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ प्रोडक्ट बॉक्स. मतलब प्रोडक्ट बॉक्स तो एक्चुअली नहीं बनेगा, वो बहुत छोटा हो जाएगा अगर शू साइज का भी. बट ये है कि नहीं सर, उससे उससे वॉल शूज बन जाती है. हाँ. शूज शूज का जो बॉक्स होता है ना, उससे बड़ा ही होता है वो. अच्छा, तो इफ यू हैव इट एट होम, यस व्हाई नॉट यूज इट. वो तो पहले से वाइट होगा ना चारों तरफ से. वाइट नहीं, ब्राउन होता है सर, उस पर वाइट शीट्स लगानी पड़ेगी. अच्छा, तुम कार्टन की बात कर रहे हो? जी 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 जी. कार्टन की तो मेडिकल जरूरी थोड़ी हो, कार्टन तो किसी भी चीज का हो सकता है ना. वो सर बट आई, मेडिसिन का घर पे होता है हमारे, इसलिए पूछ रहा हूँ. अच्छा अच्छा, हाँ नहीं नहीं, कार्टन तो किसी के पास भी घर पे अगर है, कार्टन बॉक्स है तो उसके अंदर शीट्स लगा दो, हाँ, खत्म, वो प्रोडक्ट तो बॉक्स बन हाँ, जाएगा. बन जाएगा ना अच्छा, सर उससे. लेकिन देखो पॉइंट ये है कि आपने प्रोडक्ट बॉक्स की एक ही वॉल बनानी है, बैक वॉल. ठीक है, दो जी सर, साइड जो है उधर वॉल नहीं बनानी है. अगर उधर वॉल बना दोगे तो लाइट ब्लॉक हो जाएगी आपकी. वो तो सर काट के सेट कर हाँ, लेंगे ना. या इफ यू कैन कट इट आउट एंड वो पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही रहे और जी साइड पे जी, वॉल्स ना हो, वो कट आउट हो जाए तो देन इट मेक सेंस कि वो लाइट ठीक है पास हो सर. सकती है वहाँ ठीक है सर. से. ठीक. ओके. So, going back to the previous work I was showing you of my students. So this is one of the picture जो wristwatch की ली हुई है. Again ये वही जो setup मैं बता रहा था. It's very cheap setup we did chart paper से, you know. But eventually a picture आपके सामने you cannot figure out कि किस setup में हुई है, क्या product photography का professional setup है या नहीं. So this is again another wristwatch. This is again done in the same product box which we made out of chart papers. This is done by my students. ये सारी अब जैसे ये मेडिकल कोई इंस्ट्रूमेंट है, so basically they are medical student, they also try to capture medical products as well. See, this is अच्छा, this assignment you have to do with two products. Okay, one is a transparent product, one is an opaque product. Transparent is something जिसके through light pass हो सके, such as this bottle of perfume in front of you. It could be material, उसका glass भी हो सकता है, plastic भी हो सकता है, लेकिन जिसके through light pass हो, that is the kind of transparent product I'm talking about. Otherwise opaque products बहुत सारे हैं. Opaque product, opaque किसी भी ऐसी चीज को बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को जिसके थ्रू लाइट पास ना हो सके, राइट? So this is an opaque product. This wristwatch is an opaque product. This is an opaque product. You know, these are all opaque products. लेकिन ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट ये है. यस हुदैफा, यू वांट टू आस्क समथिंग? जी हुदैफा बोले. म्यूट किया हुआ मैंने आपको शायद. अच्छा, लेट मी अनम्यूट. जी ये हुदैफा. था, वो गलती से स्पेस बार दब गया था. अच्छा अच्छा, ठीक. तो so again coming back to the screen share, so two type of products, transparent and opaque. अब आगे देखते हैं और क्या क्या काम है इसमें. So this is again medical products इन्होंने की हैं स्टूडेंट्स ने मेरे, because इनको टास्क ऐसा दिया जाता है कि एक मेडिकल प्रोडक्ट करना है, ऑर्डिनरी अपनी बिलोंगिंग में से कोई प्रोडक्ट करना है. तो यू हैव एनी चॉइस, यू कैन डू एनीथिंग. बट प्रोडक्ट आपके दो टाइप के होंगे, दो प्रोडक्ट आपके हैं, एक ट्रांसपेरेंट है और एक ओपेक है. So you can use any product you want. कुछ portfolio ये है, then I have some other portfolio, another batch over here. Yes.
अब इसमें ग्लासेस हैं, यू कैन ऑल्सो यूज योर ओन पर्सनल ग्लासेस टू यूज एज अ प्रोडक्ट, ये भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। अब जैसे ये ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स में आएगा ये वाला, राइट, ये ट्रांसपेरेंट में आ जाएगा, दिस ओपेक, सारे ओपेक प्रोडक्ट्स हैं। These are all the product photography done by my AKU students. You can use your creams, shampoos, any medicine, vitamins at home, aftershave, right? So again, now I'm going to show you some of the work by my ICRA University students. Okay. This is done by my previous batch, fall 2019, ICRA University students. This comes under again transparent product. Actually, at ICRA University, we have an entire studio, right? I wish आपको मौका मिलता मुझे मेरे साथ वहाँ चलने का and all. But inshallah, if we resume soon, I'll show you around. अगर semester end भी हो गया, even then I will call you someday to take you on a visit in the studio. So studio में we have a lot of equipment and everything, right? So we have a couple of product boxes in our studio as well. तो ये उस product box में shoot हुआ है ये वाला. This is again transparent product. This goes under transparent product obviously. See, this is all by my ICRA University fall 2019 batch. See, so you can use anything. This is most probably a power bank. अभी रिसेंटली VLE पे मैं जब मैंने अभी आज सुबह पोस्ट किया था कि क्या आइडियाज है आपके, तो there was one student who was saying कि I will use power bank. So you can use any product you want, you know. But product आपका एक opaque होगा and एक transparent होगा. These are the kind of products I've shown you. Now I am going to show you another picture of my work. Basically, I was helping a student in her what do you say, final year project. So I did a setup for her and इसकी pictures कुछ इस तरह से आती है. So basically this is the slime. Slime एक compound होता है. It's like fluid होता है, बड़ा thick सा and transparent सा. So what we did, इसकी पूरी production की. It's not like अब एक तो होता है ना कि product को as it is आपने रख दिया और picture लेनी. Now there's something else which is very important in photography. It's called production design, which I was explaining in my food photography वाली class as well. Production design is basically कि आप उसमें कुछ twist डालें ना, कुछ element of design add करें, कुछ principles add करें, कुछ आपका thought process नजर आए इसमें. ये नहीं कि as it is picture लो, as it is भी लो, but production design कहता है कि आपने थोड़ी इसके अंदर activity करनी है so that it looks aesthetically appealing. So what we did is कि ये एक wine glass लिया हमने, wine glass के अंदर we pour slime, और slime को फिर while pouring it onto the floor हमने उसको shoot किया. So again you might be able to see a बड़ी sharp crystal clear picture है, you know, again taken through a DSLR camera, बड़ी sharp आपको picture नजर आएगी है. The reason is कि ये जो है इस वक्त aperture मैंने narrow किया हुआ है. See, this is such a clear image. एपरेचर नैरो किया हुआ है. एपरेचर नैरो करने से आपको पता है कि पिक्चर जो है क्लियर हो जाती है, थिंग्स बिकम इन फोकस, ठीक है. सो और अगेन इसका सेटअप क्या था, इसमें प्रोडक्ट बॉक्स यूज नहीं हुआ है. अगेन आई एम टेलिंग यू, इसके अंदर बेसिकली लाइट पीछे से आ रही है. इंस्टेड ऑफ लाइट एक लेफ्ट से आए या राइट से आए या टॉप से आए, लाइट पीछे से आ रही है. द प्रोडक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द लाइट. और फिर इसके बाद मैंने रिफ्लेक्शन देके साइडों से, दोनों साइडों से रिफ्लेक्टर फिल देके इसके अंदर लाइट फिल किया. अदरवाइज ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट इस तरह का डार्क हो जाता है, क्योंकि लाइट पीछे हो तो प्रोडक्ट आगे जो भी हो वो डार्क हो जाता है. तो इस तरीके से इसको फिल किया. अगेन दिस वाज नॉट शूट इन अ प्रोडक्ट बॉक्स. ये पीछे एक सॉफ्ट बॉक्स है जिसके अंदर एक्सटर्नल फ्लैश गन माउंटेड है, और उस सॉफ्ट बॉक्स के थ्रू ये लाइट आती है. और मैंने यहाँ पर 2 चार्ट पेपर रख दिए हैं राइट एंड लेफ्ट पे, जो फिल कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट में. और अब इसकी मैं आपको फाइल सेटिंग्स बताता हूँ, तो यू वुड नो कि इसकी सेटिंग्स क्या है.
इस इमेज की, सॉरी ये एडिटेड है, इसकी सेटिंग्स नहीं होगी। This one is unedited. So this is shot at 1/100 second, which is shutter speed, ठीक है। And aperture आप देख रहे हैं f8 is a narrow aperture, right? And जितना narrow होगा उतना sharp करेगा, उतना आपका subject sharp होता जाएगा। And ISO is 100. Why is this 100? Because I don't need more ISO, because मेरे पास already artificial light source है। So this is how we pulled it off इसको ना। तो इसके और भी शॉट्स हैं, एक ग्रीन स्लाइम के साथ किया था, एक ब्लू स्लाइम के साथ किया था। इसका डिफरेंट रखा था हमने, इसका डिजाइन, इसका फ्लो डिफरेंट रखा था। एंड एक पिंक स्लाइम के साथ किया, दिस इज द पिंक स्लाइम। इसमें बबल्स हमने कोशिश की थी कि बबल्स क्रिएट हो एंड यू नो ड्रिंक लाइक लुक आए इसके अंदर। As you can see, it's a very sharp image, right? So then फिर थोड़ी टचिंग भी होती है इसके अंदर पिक्चर्स में, तो कैमरा वगैरह पे, तो it looks nice. So this is some of the work I want to show you. It is again this product I showed you on my screen. This comes under transparent products. So because glass भी transparent है, wine glass, plus उसके through जो slime डाली है वो भी light pass कर रही है। So this is a transparent product. So all you have to do is select two products, one transparent and one opaque. So this is your assignment. I'm going to explain you this. All you have to submit me for this task is this week is just 4 best photos. That's it. Yes, just 4 best photos. So ये 4 तस्वीरें क्या होंगी? Basically using natural light 2 फोटो लेनी है, यूजिंग आर्टिफिशियल लाइट 2 फोटो लेनी है। मैं बताता हूँ नेचुरल लाइट क्या है, आर्टिफिशियल क्या है। लेकिन आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे वन ओपेक ऑब्जेक्ट, वन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो एक जो ओपेक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया आपने, उसको नेचुरल लाइट में भी शूट करना होगा और उसी ओपेक ऑब्जेक्ट को आर्टिफिशियल लाइट में भी शूट करना होगा, सेम ऑब्जेक्ट को। इसी तरह एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा, उसको भी आर्टिफिशियल लाइट में भी शूट करना होगा एंड नेचुरल लाइट में भी शूट करना होगा। तो 4 तस्वीरें हो जाती हैं टोटल, राइट? सो नेचुरल लाइट क्या सेटअप क्या है? नेचुरल लाइट का सेटअप वही है जो अभी आपको मैंने एक वीडियो दिखाई यूट्यूब की, और उसमें डे लाइट को यानी कि विंडो को यूज किया था टू फिल इन द एनवायरनमेंट एंड प्रोडक्ट, और उसको रिफ्लेक्शन देके। दैट इज द यूज ऑफ नेचुरल लाइट इन प्रोडक्ट शूट। नाउ आर्टिफिशियल लाइट वो है जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे इमेजेस दिखाए स्टूडेंट्स के, वो सारे आर्टिफिशियल लाइट में। बट The thing is, I understand आप सबके पास कोई फ्लैश गन होगी नहीं घर पे, and I cannot expect you guys to do this on DSLR or a flash gun. That's why I want you guys to stick to cell phone. अच्छा, आप सेल फोन में क्या करेंगे आप आर्टिफिशियल लाइट के लिए? Remember I explained you in food photography कि उसमें लाइट, डायरेक्शनल लाइट जरूरी नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं डे लाइट विंडो से यूज करें। आप ये भी हो सकता है कि आर्टिफिशियल लाइट उस पर अप्लाई करें, सच एज इफ यू हैव एलईडी लाइट्स एट होम, यू हैव कैंपिंग टॉर्चेस एट होम, और इफ नॉट टॉर्चेस यू हैव योर सेल फोन, राइट? एक सेल फोन से आप पिक्चर ले रहे हो, एक्स्ट्रा सेल फोन आपके पास है, तो उनकी फ्लैश लाइट भी तो यूज की जा सकती है ना। कॉन्स्टेंट फ्लैश लाइट जो आप अप्लाई करते हो सेल फोन में, वो भी यूज हो सकती है आपके प्रोडक्ट के ऊपर एज ए लाइट सोर्स। तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास। घर में आर्टिफिशियल लाइट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी एनवायरनमेंट में जो भी अवेलेबल है आपके घर पे, उसकी मैंने एग्जांपल्स दिए आपको। तो यू हैव टू टेक वन पिक्चर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट इन नेचुरल लाइट और एक पिक्चर उसकी आर्टिफिशियल लाइट पे लेनी है। इसी तरह एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसकी एक पिक्चर आपने नेचुरल लाइट में लेनी है और उसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की एक पिक्चर आर्टिफिशियल लाइट में लेनी है। So the reason I am asking you to do artificial light and natural light both is basically I want you to study the nature of light, understand the nature of light by doing this practically. जब नेचुरल लाइट को यूज करते हो तो उसका नेचर, वो किस तरह प्रोडक्ट को फिल करती है, एनवायरनमेंट को फिल करती है, प्रोडक्ट के अराउंड एक रैप क्रिएट करती है लाइट का, उसका नेचर और उसकी स्टडी अलग है। और आर्टिफिशियल लाइट
की थोड़ी सी हार्श लाइट होती है, हार्श शैडोज बनते हैं, ये चीजें आप अंडरस्टैंड करोगे व्हाइल यू डू दिस टास्क. So this is the reason why I want you to do one picture with natural light, one picture with artificial light for both opaque and transparent objects. ठीक है, ये तो मैंने आपको असाइनमेंट भी एक्सप्लेन कर दिया कि 4 बेस्ट फोटोज हैं आपकी. ठीक है. So now what I'll do is we'll discuss this like अभी तो हमने ये मैंने टास्क एक्सप्लेन किया आपको. Now I want you guys to pull in your ideas, and as I also raised this concern on VLE कि आप लोग मुझे VLE पे टाइप करें कि एक डिस्कशन क्रिएट की थी मैंने कि आप उसमें मुझे बताएं कि कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज करेंगे. So now the first question I'm asking you right here is each one of you should answer me on this कि ओपेक प्रोडक्ट आप कौन सा यूज करोगे और ट्रांसपेरेंट कौन सा यूज करोगे. आर्टिफिशियल लाइट के लिए क्या सेटअप करोगे. नेचुरल लाइट का तो सबको पता है, कोई इशू नहीं है. आपने घर की विंडो के करीब जो है टेबल मूव करके और बॉक्स की एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया. सो लेट्स स्टार्ट विद Uzaifa. Yes, let's start with Uzaifa. जी Uzaifa, what are your ideas? जी Uzaifa, you want to contribute? Yeah. सर एक जो है टॉर्च है मेरे पास, जो मतलब उसकी लाइट थोड़ी जो है स्ट्रॉन्ग है, तो वो यूज़ करूँगा सर आर्टिफिशियल लाइट के लिए. और मेरा ऑब्जेक्ट जो होगा ओपेक में मेरी वॉच या परफ्यूम होगी कोई भी. परफ्यूम तो ट्रांसपेरेंट हो गई है बेटा. सही है, चले सर उसको फिर ट्रांसपेरेंट में ले लें, फिर वॉच को जो है ओपेक में ले लेते हैं. हाँ ये भी हो सकता है. गुड. अच्छा तो आर्टिफिशियल लाइट के लिए क्या क्या है आपके पास. आर्टिफिशियल लाइट के लिए सिर्फ सर अभी मेरे पास जो अवेलेबल होगा वो मोबाइल टॉर्च होगा, या तो फिर जो आपको एक टॉर्च बताइए एक है घर पे वो यूज़ करना. अच्छा अब जैसे मेरे पास एक टॉर्च है, शो यू दिस. ये लाइक कैंपिंग टॉर्च है. ये है तो छोटी दिखने में लेकिन ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल टॉर्च है. अब इसका थोड़ा सेल वीक है, अदरवाइज ये ठीक ठाक पावरफुल है. मतलब इरिटेटिंग है आंखों में, बिल्कुल आपकी वाइट आउट कर देती है. ये छोटी छोटी टॉर्चेज भी अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो. अच्छा अच्छा सर. इसके ऊपर इंटरेस्टिंग मजीद क्या कर सकते हो, ये एक सेलोफेन पेपर आता है. आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट. एक प्लास्टिक की शीट होती है कलर्ड, रेड कलर का सेलोफेन आता है, ब्लू कलर का आता है पेपर. वो बेसिकली प्लास्टिक का होता है. वो इसके ऊपर रैप कर दो और इसको रबर बैंड कर दो, तो इसमें से रेड लाइट निकलेगी, ब्लू लाइट निकलेगी, येलो निकलेगी. तो यू कैन चेंज द कलर ऑफ लाइट एज वेल. जी उजैफा. सर तो मैं ये पूछ रहा था कि जो एलईडी बल्ब जो होते हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल लाइट के लिए. बिल्कुल कर सकते हैं. एलईडी का इतना अच्छा रिजल्ट आता है, आपकी सोच है प्रोडक्ट फोटोग्राफी में, क्योंकि वो सर पूरी वाइट होती है ना, एकदम वाइट होती है जी जी एलईडी. हाँ उसका असल में सॉफ्ट. उसका होल्डर वगैरह पूरा बना हुआ है मेरे पास, रखा हुआ किसी काम के लिए बनाया था, तो वो यूज़ कर सकते हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा ये होल्डर वाली बात आपने अच्छी की, मेरी डिस्कस भी करनी थी आपसे. मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को पहले पास्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, उन्होंने घर में ही सेटअप किया हुआ है प्रोडक्ट फोटोग्राफी का, और उनको पूरा सेटअप मैंने आइडिया दिया था, पूरा डेमो देके कि भाई विदाउट स्पेंडिंग एनी अननेसेसरी मनी यू कैन मेक दिस एट होम. और अभी उनमें से कुछ स्टूडेंट अच्छी वेबसाइट्स के लिए प्रोडक्ट शूट भी कर रहे हैं. ठीक है. वो बस उसमें से एक एलईडी था, एलईडी बल्ब होता है, एक तो एलईडी लाइट होती है रिचार्जेबल, जो लाइट चली जाती है तो आपने एक रखी हुई होती है एलईडी लाइट घर में, राइट. एक तो वो रिचार्जेबल होती है. एक होता है एलईडी बल्ब जो ये दीवार में लगता है होल्डर के अंदर, जो एनर्जी सेवर को जिसने रिप्लेस किया एलईडी बल्ब में. तो वो एलईडी बल्ब बेसिकली उसका होल्डर लिया आपने. होल्डर एक एक कन्वर्टर आता है, पीछे 2 पिन होता है और आगे बल्ब का होल्डर होता है, राइट. तो वो आपने किसी भी एक्सटेंशन में डाल दिया. नाउ एक्सटेंशन को किसी पावर सॉकेट में डाल दिया, एक्सटेंशन पूरा जो है आपका पोर्टेबल लाइट बन गया. समझ रहे हैं आप बात. अब आपने पोर्टेबल लाइट में कन्वर्ट कर दिया उसको. अब आप आपके पास एक असिस्टेंट है, या आपने एक्सटेंशन को एक जगह रख दिया, फिक्स कर दिया, तो भी आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी आराम से कर सकते हो. और उसका आउटपुट बहुत अमेजिंग होता है एलईडी का जो आउटपुट है आर्टिफिशियल लाइट में. So thank you so much, Hudaifa, for contributing this idea. Yeah. Ji Leroy, what do you have? I want your ideas. What are you planning, Leroy?
unmute him. Roy. Okay, we'll talk to someone else. जी अली हैदर, I've seen your work. Your work is amazing. Nature photography का भी काम देखा मैंने. I want you to pull in your ideas. I have unmuted you, Ali हैदर. फातिमा साजिद, फायजा, अशर खान, जैन, जी साकिब, सुधीर, वकार. जी can you all hear me? जी सुधीर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सुधीर, can you hear me? Guys, can you hear me? Hello. Hello. अच्छा, आवाज आ रही है सबको? जी, I want you guys to pull in your ideas. जैसे अभी जिस तरह हमजा ने explain किया कि what he is planning to do, I want you guys also to tell me ये product क्या लोगे और किस तरीके से shoot plan करोगे. Yes, Leroy, starting with you. Sir, I have this idea. ये जो अभी लास्ट एक बच्चे ने बोला था वो बॉक्स में, कार्टन के बॉक्स में. So what if for the lighting we take a torch or something like that, cover the inside of the box with white chart paper and put a light inside that. तो जो लाइट की रिफ्लेक्शन होगी वो फिर फोर कॉर्नर्स को टच करेगी और मे बी उसका इम्पैक्ट वुड बी वेरी अमेजिंग. आई मीन मैं ट्राई करके देखूंगा अगर इट वर्क्स आउट. वेरी नाइस आइडिया, यू शुड ट्राई दैट. एंड प्लस जो ये सेटअप बनाओ ना ले रहा है, उसकी भी एक पिक्चर लेना सेटअप की, because I want you to explain when you post the pictures of your product, उसके साथ ये setup की भी पिक्चर पोस्ट करो, because that will be very interesting that you posting the picture of the setup and explaining to everyone कि बनाया कैसे तुमने. ठीक है, क्योंकि सर वो घर पे कार्टन, वो जो बहुत बहुत बड़े जो कार्टन नहीं होते हैं, राइट, एक्स्ट्रा लार्ज वाले, वो पड़े हैं. तो आई मीन उसके अंदर पूरा वाइट, उसके बैकग्राउंड पे वाइट कलर का चार्ट पेपर, उसके साइड पे, एंड देन कोई टॉर्च रख लिया, कोई ऐसी सोर्स लग लिया, किसी और मतलब किसी का फोन रख लिया फ्लैश ऑन करके, तो वो पूरा बॉक्स में जो है ना एक अलग सी लाइट ब्राइटनेस आ जाती है. So I was thinking, मतलब let me just check how would that get an impact on the product. Good, very nice idea. So what will be your products, Leroy? Opaque क्या होगा और transparent क्या होगा? Transparent product, बहुत सारे परफ्यूम्स वगैरह पड़े हैं, the glass bottles, या फिर I can do this, ये जो हमारे पास ये पिज़्ज़ा सॉस के बॉटल्स, those apple jams वगैरह, ये भी तो वो हैं. जैम इज अ वेरी नाइस आइडिया. इसकी जैम की लुक मोर और लेस वही आएगी जो स्लाइम का भी मैंने आपको शूट दिखाया ना वाइन ग्लास के अंदर. और यू कैन आल्सो मेक सम कॉकटेल लाइक कोई रूह अफ़ज़ा की कोई रूह अफ़ज़ा बना के उसको ग्लास में डाल के एंड आइस क्यूब डाल के, यू वांट दैट एज योर प्रोडक्ट. उसके थ्रू लाइट पास हो रही है ऑब्वियसली. दैट इज अनदर आइडिया. सर एक प्लास्टिक कलर का वाइन शेकर है, वो जो नहीं यूजुअली जो फॉरेन बार्स में होते हैं, शेकर्स होते हैं, वो इट्स अ प्लास्टिक वन. उसमें जो है वो इट्स लाइक क्रिस्टलाइज में, हर जगह क्रिस्टल लगे हुए उसके, फेक वाले. तो वो जब लाइट पास होती है तो वो एक अच्छा सा प्रिज्म टाइप बन जाता है. राइट, या सो यूज दैट प्रोडक्ट. गुड. एंड फॉर द अदर थिंग द नेचुरल वन, सर वो तो कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे कि ये शान के डब्बे हो गए मसाले के, घर में जो भी अवेलेबल हो, ज्यादा एक्सपोजर करे अपने ब्रांड को. एग्जैक्टली. एंड बस कोशिश आप लोगों ने करनी है प्रोडक्ट का साइज ज्यादा बड़ा ना हो. ट्राई टू यूज अ स्मॉल प्रोडक्ट, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप आप कर नहीं सकते हो. आप छोटा सा सेटअप कर रहे हो. तो ये शान का मसाले का डब्बा इज फाइन, ये मैक्सिमम साइज है, इससे बड़ा प्रोडक्ट ना रखना. जैसे मैंने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई, इसमें बड़े प्रोडक्ट्स भी हैं.
तो वो इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट बॉक्स हमारा बड़ा था, 2x2 फीट का बॉक्स बना हुआ था। तो आपके पास इतना बड़ा सेटअप नहीं होगा तो कीप योर प्रोडक्ट, सेलेक्ट योर प्रोडक्ट विच इज स्मॉलर, हाथ के अंदर आ जाए इतना बड़ा प्रोडक्ट, समझ लो। ओके सो जी फायदा, आज आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया, यू गोइंग टू एक्सप्लेन अस कि क्या सेटअप कर रही हैं आप और प्रोडक्ट्स कौन से। सर सॉरी, हमने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो सर हमने डेमोस नहीं देखी जो आपने पिक्चर्स शेयर की थी। अच्छा अच्छा, ऐसा है कि आपने इस वीक प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है और दो टाइप के प्रोडक्ट लेने हैं, एक ट्रांसपेरेंट और एक ओपेक। जो ट्रांसपेरेंट है वो ऐसा होता है जिसके थ्रू लाइट पास होती है, और जो ओपेक होता है वो ऐसा होता है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती। तो मैंने कुछ पिक्चर्स भी दिखाई हैं, अपने पास स्टूडेंट्स का काम भी दिखाया है, और आपने एक पिक्चर नेचुरल लाइट में लेनी है, एक पिक्चर आर्टिफिशियल लाइट में लेनी है। इस तरीके से असाइनमेंट होगा। कुछ काम मैंने नहीं दिखाया, नहीं देखा आपने, तो मैं अभी दिखा देता हूँ। आपने कुछ मैंने स्टूडेंट्स का अपने काम शेयर किया था, कुछ अपना दिखाया था। फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट, ठीक है जी, ये ट्रांसपेरेंट है क्योंकि लाइट पास हो रही है इसमें से। लेकिन एंड दिस sunglasses these are also transparent products, right? In fact ये सैंडल भी ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है, सी ये भी सी थ्रू है सैंडल, ओके राइट। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स जिनके थ्रू लाइट पास नहीं होती है, ये ओपेक प्रोडक्ट्स हैं, सच एज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो रही। तो मैं सर, लाइट आपसे पास में जी, कहाँ से करनी है? राइट से, लेफ्ट से, ऊपर से, फ्रंट से? आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं? हाँ यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो वीडियो का एक लिंक भी शेयर किया है VLE पे, वो भी देख लो। और वो यहाँ पर ठीक है। वीडियो खोल के भी दिखाई मैंने सबको। एंड लाइट पास का डायरेक्शन का कोई रूल नहीं है कि लेफ्ट से लाइट आए, राइट साइड, टॉप साइड, दैट्स टोटली योर कॉल। और यही तो लर्निंग है आपकी, कि आपने डिफरेंट एंगल से देखनी है लाइट को, स्टडी करना है कि किस पार्ट से आ रही है। और बस ओके टास्क ये कि आपने एक एक जो पिक्चर है वो ओपेक प्रोडक्ट की नेचुरल लाइट से लेनी है। नेचुरल लाइट मतलब अपना पूरा सेटअप घर की खिड़की के करीब कर देना है, और एक पिक्चर जो है ट्रांसपेरेंट आर्टिफिशियल लाइट से लेनी है, यानी कि टॉर्चेस, ऑलराइट। सेल फोन, इस तरीके से। तो दो चार टोटल पिक्चर हैं इस वीक, जस्ट 4 पिक्चर्स टू सबमिट। ठीक है सर। ओके सो हु एल्स हैज आइडियाज टू, या फायजा, नहीं फायजा कम हो गया, डिस्कस जी। फातिमा, एनी आइडियाज? फातिमा साजिद। Sir, for the opaque object, I'll take any makeup or product. और दूसरा ट्रांसपेरेंट के लिए आई थॉट कि हम लोग पेप्सी की बोतल ले सकते हैं। Yeah, that is also good idea. So you will take a bottle जिसमें पेप्सी हो, या empty bottle? सर मैं थोड़ा उसको हाफ कर सकती हूँ या उसको हाफ से कम कर सकती हूँ ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट आए। Yeah, this could be good. उसका शेडो अच्छा है। Basically प्रोडक्ट फोटोग्राफी का मकसद होता ही है कि आप लोगों को एडवर्टाइजिंग के करीब लाया जाए। एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी कैसे होती है, सर्टेन ब्रांड्स फिर यही प्रोडक्ट फोटोग्राफी को अपने कैंपेन्स में कैसे यूज करते हैं। So this is the reason why we teach product photography, क्योंकि एडवर्टाइजिंग मीडिया से बहुत ज़्यादा इसका कनेक्शन होता है। तो जी बिल्कुल सही आपने सर हम लोग आइडिया दिया। बैग्स ले सकते हैं फॉर द ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब हाँ वो थोड़े बिल्कुल, बड़े होते हैं, बट आपने बोला देखो बड़े का मुझे इशू नहीं है, इट्स एज फार एज यू कैन हैंडल। अगर उसका प्रोडक्ट बॉक्स का सेटअप आप बना सकते हो, बॉक्स डजंट मीन इट शुड बी अ बॉक्स, मतलब एक पीछे व्हाइट चार्ट पेपर से आप उसकी वॉल और फ्लोर बना सकते हो, और उसके अंदर आपका बैग फिट आ जाता है, तो यस व्हाई नॉट यूज इट। सही है सर। ठीक है, इट वुड लुक नाइस। अच्छा तो इनफैक्ट मेरे पास पिक्चर्स हैं इस वक्त, कहाँ है मैं बता ढूंढना मुझे पड़ेगा, एंड क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है। मैंने प्रोडक्ट फोटोग्राफी की भी है बैग्स की, वो भी मैं आपको बताता। अच्छा इन द मीन टाइम आई वांट, मैं वो ढूंढता हूँ इफ आई कैन फाइंड दैट पिक्चर क्विकली। जब तक मुझे और लोग अपने आइडियाज पुल इन करेंगे, आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? अली हैदर, यस आई वांट यू टू कंट्रीब्यूट। प्रोडक्ट कौन से हैं तुम्हारे, ओपेक कौन से है, ट्रांसपेरेंट कौन सा है? अली हैदर, यू देयर? ओके, अशर खान, यस व्हाट्स योर प्लान?
Ashar Khan. Oh. Saqib, you there? Saqib Javed. Hello. Okay. जी Uzaifa, do you have any ideas regarding full in करना चाह रहे हो तुम बताओ? वकार. Okay, so I think this is it. आप लोग if there is anything else you want to ask or discuss, you can. Sir? जी वकार. Yes. Yes, sir. Yes, sir. जी. I have been listening to you, whatever you said. नहीं सर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहना. अच्छा. Yes, sir. ठीक. बस आपके ये प्लान है आपका कि क्या प्रोडक्ट कौन से यूज करेंगे? ट्रांसपेरेंट और ओपेक. सब परफ्यूम्स हैं, उसके बाद ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं कुछ और, जैसे मोस्टली फीमेल्स के कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं. सही. ठीक है. आई होप. जी. इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जैसे कि such as portable speakers and. Yeah, why not? Okay. कर सकते हैं, लेकिन उसका देख लेना कि अगर आप उसका साइज अगर बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली आपको. नहीं सर, पोर्टेबल स्पीकर तो छोटा सा ही होता है. ओ या राइट. पोर्टेबल स्पीकर्स. ओके ठीक है. वो मोबाइल स्पीकर्स जो होते हैं. अच्छा, एक लास्ट टिप है गाइस, दिस इज फॉर एवरीवन. व्हाटएवर प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, प्लीज उसको साफ कर लेना, कपड़ा वपड़ा मार लेना, बिकॉज पिक्चर इतनी अल्ट्रा क्लियर आ जाती है बाजू का कि वो उसके अंदर एक उसका स्क्रैच, उसके ऊपर डस्ट सब नजर आना शुरू हो जाता है. So that won't look nice in product photography. क्योंकि when a website or a brand hires you for a product photography, तो वो एक एक चीज देखते हैं और उस वक्त आप प्रोडक्ट का एक शॉट नहीं लेते हो, उस वक्त उसके सर्टेन एंगल्स लेते हो. फ्रंट से एक शॉट लेते हो, एक ओवर द टॉप शॉट लेते हो प्रोडक्ट का, फिर एक साइड व्यू से लेते हो. ये 3 व्यूज तो कंपलसरी होते हैं. इफ you have seen Daraz की वेबसाइट और एनी अदर ऑनलाइन जहाँ पर आप ऑनलाइन बाइंग कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट आप देख लो, उसमें प्रोडक्ट्स के शॉट्स जो हैं वो कम से कम 3 एंगल तो मिनिमम होते हैं. प्लस जूम का ऑप्शन होता है. दराज की वेबसाइट पे चले जाओ, किसी भी वेबसाइट चले जाओ, यू कैन एक्चुअली जूम इनटू द फोटो और वो अल्ट्रा क्लियर पिक्चर होती है. ज्यादातर वाइट बैकग्राउंड्स पे ही ली हुई होती है. द रीजन इट्स टेकन ऑन वाइट बैकग्राउंड बिकॉज इट लुक वेरी डिसेंट ऑन वाइट बैकग्राउंड्स और सारी लाइट फिल इन होती है उसको, तो वो इट लुक्स नाइस. तो इस वजह से जितनी भी ब्रांड की वेबसाइट है उस पर इस तरीके से ये पिक्चर्स होती हैं डिफरेंट एंगल्स के लिए. मेक श्योर योर प्रोडक्ट इज वेरी नीट एंड क्लीन. साफ सुथरा करके उसको फिर पिक्चर लेना. Anyways, I hope this assignment was clear to you. All you have to do is submit me 4 best photos. That's it. Next week we will have session 12. For session 12 में I will announce you the final project submission किस तरह होगी. So until then, I want you all to please save all your work in folders. Assignment 1 का काम assignment 1 का folder बना लो, not on the Facebook group, in your actual laptops. Laptops के अंदर folder बना लो assignment 1, 2, 3, 4, 5, 6 onwards. 1 के अंदर 1 के assignment के pictures डालने शुरू कर दो, 2 के अंदर 2 के pictures डालने शुरू कर दो. Make sure जो भी pictures आप डाल रहे हो फाइनल सबमिशन के लिए वो हाई रेजोल्यूशन हो. हाई रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि जो पिक्चर आपने सेलफोन से ली है वो सेलफोन की पिक्चर वहाँ सेव करनी है वाया व्हाट्सएप या वाया फेसबुक. उसको डाउनलोड करके वहाँ सेव नहीं करना, वो लो रेजर हो जाता है. ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो स्टार्ट सेविंग ऑल योर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस इनटू दोस फोल्डर्स, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन का पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूँगा along with small tasks. So until then, I want you guys to start saving all those work in your computers by making folders. So I hope this session was clear and product photography ज़्यादा बड़ा task नहीं है और जिनका पुराना काम नहीं complete, please guys वो भी side by side आप complete करते रहें and post करते रहें. I am seeing all your work and I like all your efforts. आप काम कर रहे हो and submit भी कर रहे हो. So I hope this is it and everything was clear. So let's just meet next week probably. Till then, stay safe and Allah.